This is the 8th video for class 10 chapter acid, base and salt. In this video we will study about washing soda and plaster of Paris. What is the formula of washing soda? The formula washing soda which is generally used in our house, हमारे घर में इसका यूज किया जाता है. The formula of washing soda is Na2CO3 dot 10H2O. What will be the name? It is also called soda ash. What will be the name? Na sodium carbonate 10 deca water hydrate. Then what we will say that formula of washing soda is Na2CO3 dot 10H2O. It means sodium carbonate having 10 molecules of water. The full name of it will be sodium carbonate 10 for deca and hydrate matlab water. Then how we get this Na2CO3? We can easily get Na2CO3 when react with 10 molecules of H2O. It can be written as and can be formed as Na2CO3 dot 10H2O. Then from where Na2CO3 comes? Na2CO3 कहाँ से आएगा? We have studied about the baking soda. Formula of baking soda is NaHCO3. When it is heated, it will form Na2CO3 dot plus H2O plus CO2. बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करते हैं तो हमेशा इट विल डिसोसिएट एंड फॉर्म Na2CO3 H2O and CO2. From here we can get Na2CO3. बेकिंग सोडा से हम लोग Na2 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हैं. And after adding 10 molecules of H2O, we can easily get the formula of washing soda. We can easily see, इसको देखेंगे that Na will come from sodium chloride, H will come from water, carbonate it might become from CO2, and one thing is missing, that is ammonia, that is NH3, and when these all react with each other it will form NaHCO3 and NH4Cl. ये आपका आ गया बेकिंग सोडा. और बेकिंग सोडा से Na2CO3 आ गया. Na2CO3 को अगर पानी में हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका वॉशिंग सोडा आ जाएगा. सबसे पहले देखने की कोशिश कीजिएगा. दिस विल रिएक्ट फ्रॉम हियर वी गेट बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा को फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं. तो अब Na2CO3 बन गया. Na2CO3 को फ्रॉम 10H2O के साथ मॉलिक्यूल्स के साथ मैच ऐड कर देंगे तो आपका Na2CO3 बन गया 10H2O और ये आपका वॉशिंग सोडा है. There is very similarity between NaHCO3 and Na2CO3. कंफ्यूजन हो जाता है कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में क्या डिफरेंस है, कई बार कंफ्यूजन होता है. तो आपको याद रखना, वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, इन वॉशिंग सोडा मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. दोनों मिलता जुलता है. Na CO3 कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट. यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है. इसके जगह पर ज्यादा मात्रा में H2O पानी के मॉलिक्यूल्स है और ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स है, यानी आपको धोने में मदद करेगी. तो इस तरीके से आप लोग बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में डिफरेंस याद रखना चाहे तो रख सकते हैं. What then now what will be the use of washing soda? वॉशिंग सोडा का क्या यूज है? It is used to clean our clothes. It is used in preparation of papers. It used to make hard water soft.
ये सारे कुछ जो वॉशिंग सोडा के यूजेस हैं, और इसको आप थ्रू बुक्स इजिली कैन गेट इट, इसको आप लोग बुक के थ्रू आसानी से प्राप्त कर सकते, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू थ्रू द नोट्स के थ्रू इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ in NCERT book there is one activity 2.15. In this the topic will be are the crystals of salt really dry? क्या सच में सूखा हो जाता है? In this there one experiment has been, one activity has been done. What is that? We have to take CuSO4. What we have to take? CuSO4. Then it having the blue color. इसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। When it is heated, जब इसको हीट किया जाएगा, then the blue color of that CuSO4 will be removed and it cut back, it change into white powder. ये किस में आ जाएगा? white powder में। Through this, इससे हम लोग, और जब कभी भी then again when we add water in that white powder में फिर से अगर हम लोग पानी को ऐड करेंगे, then it again back into blue color. Through this experiment it has been proved, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जा रहा है या किया जा चुका है that always there are some water molecules present in each and every salt, like वॉशिंग सोडा के जैसा। एंड देयर इज वन मोर थिंग्स इज गिवन, दैट इज जिप्सम। जो आपका था एक्सपेरिमेंट में CuSO4 को लिया गया था, उसमें .5H2O 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CuSO4.2H2O एंड फ्रॉम दिस ओनली वी, इसका ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का। एंड फ्रॉम जिप्सम ओनली वी गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CuSO4.1/2H2O। how it is formed? Then first of all CuSO4.2H2O, that is gypsum, ये gypsum है। It has been heated at temperature of 373 Kelvin, इसको हीट किया जाएगा। It dissociate partially मतलब कुछ अमाउंट जो होगा वाटर का इसमें रहेगा। Then what it will form? It will form CuSO4.1/2H2O and rest 1/2 part of H2 has been removed, ये निकल जाएगा। Then this is formed and this is plaster of Paris। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा है? तो मोस्टली जिप्सम यूज्ड टू बी फाउंड इन पेरिस में पाया जाता था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला हो गया CuSO4.1/2H2O और ये पाउडर फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में होगा। पार्शियली डिसोसिएट हुआ है। अगर इसी को हम लोग CuSO4 को 1/2H2O को एप्रोप्रिएट यानी सही मात्रा में पानी को डालेंगे, दैट इज 1/2H2O, देन अगेन इट बैक इनटू CuSO4.2H2O और फिर से यह जिप्सम का रूप ले लेगा। सबसे पहले क्या हो रहा है? जिप्सम को हीट किया जा रहा है 373 केल्विन पर, then CuSO4 1/2H2O is formed and that is a plaster of Paris। and जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर 1/2 एप्रोप्रिएट अमाउंट में पानी को सप्लाई कर रहे हैं, अगेन इट बैक इनटू 2H2O, फिर से यह जिप्सम का रूप ले रहा है। थ्रू दिस इट हैज बीन प्रूव दैट व्हेन इट इज हीटेड, जब हीट किया जा रहा है तो मॉइस्चर जो था 2H2O जो मॉलिक्यूल्स था पानी का उसमें से निकल चुका है और फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर का रूप ले रहा है। देन वाई दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ किया जाता है? आपके घर में जो अच्छी क्वालिटी की मूर्तियां होंगी उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर को लेते हैं
और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं अप्रोप्रिएट अमाउंट में, तो फिर से वो क्या होता है उसके साथ सोल्युबल होकर के फिर सब जिप्सम का रूप ले लेता है और वो हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है तो जहां पर बोन्स है वहीं पर वो उसको रखने में मदद करता है। डेकोरेशन करना है घर पर तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। दिस आर द यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड दैट वाज द यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। थैंक यू।